हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इससे पहले हमने फ्लडिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग देखा था। आज वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे इसमें स्टेप्स परफॉर्म होते हैं और जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से कैसे डिफरेंट है। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इट इज अ टाइप ऑफ अ राउटिंग प्रोटोकॉल used in your computer network. It works by having each router in the network maintain a map of the network topology. So this map, or we can call it as a link state database, is created by each router exchanging information about its directly connected neighbors and the state of those links. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है वो राउटर्स कैसे करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कि इनसे अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनको उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, प्लस क्या लिंक का स्टेटस है उसको शेयर करते हैं। इस इंफॉर्मेशन से क्या होता है, राउटर कैन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच एनी डेस्टिनेशन इन द network using the algorithm like Dijkstra algorithm. The shortest path algorithm we can use in a link state routing protocol or link state routing algorithm, where routers can find the shortest path to reach the destination. So for example, for your link state routing protocol we have a OSPF called open shortest path first, and also one is ISIS, means intermediate system to intermediate system. They are the two popular protocols which is included in your link state routing algorithm. Okay, so this is the basic introduction. And if we talk about, see, in distance routing algorithm it is applied on data packets, whereas link state routing algorithm it is applied on control packet. ठीक है, ये कभी कभार पूछ लेते हैं। जो आपका डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम वो किस पे अप्लाई होता है, डेटा पैकेट पे, जबकि जो लिंक स्टेट एल्गोरिथम है वो किस पे अप्लाई होता है, कंट्रोल पैकेट्स पे, which is based on that data packets are routed. Okay, now compared to distance vector, link state routing is costly. ये भी हम देखेंगे कैसे। Your LSP packets contain the complete information of the network, that is number of the routers, number of the links, what is the links up and down, and the LAN network that are connected. So that much of information we need to maintain on LSP packet, while in data packet all information are not contained. That's why we said that your distance vector is less costly rather than your link state routing algorithm. So this LSP packet will generated by any one router. Any one router can generate this LSP packet, and this LSP packet is broadcasted. Broadcasted means flooded, so that every router will get the LSP packet. So this LSP packet will generate by any one router, and then that packet will be broadcasted so that every router will get the LSP packet. So every router here need the LSP packet. Why? Because this LSP packet contains the complete information about your network, routers, your links up and down, your LAN network which you are connected. So here routing table of the router is compare with the LSP entries. देखो यहाँ पे क्या होता है, जो routing table होती है राउटर की वो किससे कंपेयर होती है, LSP एंट्रीज से, क्योंकि LSP एंट्री में सारी इंफॉर्मेशन है। राउटर टेबल्स जो होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, तो राउटिंग टेबल्स जो होंगे वो किससे कंपेयर होंगे, LSP पैकेट से। तो जो हमारी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ब्रेकेज होगा लिंक में, then immediately every router will get the information with the help of LSP, क्योंकि LSP informations को maintain करके रख रहा है। तो अगर कोई भी ब्रेकेज होगा तो सारे राउटर्स को क्या होगा, information मिल जाएगी with the help of LSP by comparing with its time stamp value, age और lifetime of a packet। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट का आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट ब्रॉडकास्ट मीन्स फ्लडिंग करने से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारा ट्री है, जो हमारा ग्राफ है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ट्री में। जो हमारा क्लोज्ड ग्राफ है उसको हम ट्री में कन्वर्ट करेंगे ताकि LSP पैकेट जो है लूप में स्टक ना हो। तो हमें सबसे पहले इस ग्राफ को करना पड़ेगा ट्री में कन्वर्ट, और इसको ट्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं वो विच इज योर डिजास्टर एल्गोरिथम, और हम उसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। अब आपको इस ग्राफ से इस ट्री बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं,
यहाँ पे आप देखिए जैसे ये ग्राफ दे रखा है, सपोज मैं ए नोड से चालू करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सपोज हमने लिया है कि जो बी राउटर है वो एलएसपी पैकेट जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बी राउटर से जितनी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करूंगी। तो जैसे देखो, बी से अगर मुझे ई पे पहुंचना है तो ये ही शॉर्टर है, तो बी से ई हम ये वाली एज ले लेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए बी से डी के थ्रू जाएंगे तो 12 कॉस्ट आ रही है, जबकि बी से ई डायरेक्टली जा सकते हैं विथ 1 कॉस्ट। इसी तरीके से बी से डी पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है, 5। मिनिमम कॉस्ट 5 ही आएगी, आप चाहे देख लो। बी से आप ए सी डी के थ्रू जाओगे तो 4 + 5 + 6 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। इसी तरीके से अगर इधर से जाओगे तो 1 + 7 इज 8, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर, बट यू हैव अ डायरेक्ट लिंक विच कॉस्ट 5 ओनली, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिंक बना देंगे। इसी तरीके से बी से ए पे जाने के लिए आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 4, और बी से सी पे जाने के लिए, अब देखो बी से सी पे जाना है तो हम दो तरीके से जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हमें ए डी और ई पे जाना था तो हमारे पास डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल थे और उनकी कॉस्ट कम आ रही थी, तो हमने वो ले लिए थे। लेकिन अब बी से सी पे जाने के लिए कोई डायरेक्ट लिंक अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट राउटर। तो देखो, फर्स्ट एक राउटर या तो मैं ए सेलेक्ट कर सकती हूँ या डी सेलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज बी से मैं सी पे जा रही हूँ वाया राउटर ए, तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, 4 + 1 इज 5। और अगर मैं बी से सी पे जाती हूँ वाया डी, तो कॉस्ट कितनी लग रही है, 5 + 2 इज 7। ठीक है, तो कॉस्ट कौन सी कम है, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के थ्रू हम जाएंगे, तो ये वाला पाथ हमारा बन जाएगा सी पे जाने के लिए। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ई से भी जा सकते थे, बट हम जब एक ही राउटर से जा पा रहे हैं मिनिमम कॉस्ट में, तो हम दो इंटरमीडिएट राउटर्स क्यों लें, क्योंकि अगर आप दो राउटर लोगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 + 7 + 2 मीन 7 8 एंड 9 10, 10 कॉस्ट हो जाएगी ई के थ्रू जाने की, विच इज वेरी हाई। तो इसलिए हमने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया, ए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन कर सकते हो आप जब आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एल्गोरिथम बना रहे हो। अब इसमें एक सिचुएशन क्या आ सकती है कि सपोज दो पाथ ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट सेम आ रही है, तब हम क्या करें, जैसे यहाँ देखते हैं। यहाँ अगर आप देखो तो देखो, ए आपका एलएसपी पैकेट जनरेट करेगा, तो आपको ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है राउटर्स की। तो ए से अगर मेरे को सी पे जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो 4 आ रही, तो ए से सी ले लिया। अब आप यहाँ देखो, ए से मुझे बी पे जाना है तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 3। अगर मैं ए से बी पे सी के थ्रू जाती हूँ तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 + 1 3, विच इज सेम। नाउ दिस इज अ टाई। तो अब इस टाई ब्रेकर यहाँ पे क्या लेंगे कि आप चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ होप्स आपके लग रहे हैं, जितने नंबर ऑफ होप्स कम लगेंगे हम वो पाथ सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप सी के थ्रू जा रहे हो तो नंबर ऑफ होप्स कितने लग रहे हैं, 1 और 2, जबकि ए से बी पे आप डायरेक्ट जा रहे हो तो नंबर ऑफ होप कितने लग रहे हैं, ओनली 1। फ्लडिंग में हम ये करते थे। तो यहाँ पे आप कौन सा पाथ सेलेक्ट कर लोगे, ए टू बी। अगर कॉस्ट सेम आ रही है तो आपको क्या चेक करना है कि होप कितने आ रहे हैं, तो जितने मिनिमम होप्स होंगे हम वो पाथ सेलेक्ट करेंगे। So if two or more path value same, then we apply the calculation of number of hopes. Okay. अब एक सिचुएशन आ सकती है कि मैम अगर नंबर ऑफ होप्स भी सेम हो तो क्या करेंगे, वो हम देखते हैं। पहले ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 देखो, ए जो राउटर है वो एलएसपी पैकेट को जनरेट कर रहा है। अब इसको इस एलएसपी पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना है, तो पहले हमको इस ग्राफ को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ए से बी पे जाने के लिए देखो ये शॉर्टेस्ट है 1। फिर ए से ई पे जाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, 1 + 1 इज 2। ओके। ए से अगर मुझे सी पे जाना है तो देखो ए से सी पे डायरेक्ट जाने के लिए कितना है, 6। अगर मैं ए से वाया बी और डी जाऊं तो कितनी कॉस्ट लग रही है, 1 + 2 + 1 विच इज 4। देखो ये वाला पाथ अगर मैं फॉलो करती हूँ तो 4 ही लग रही है, जबकि ये वाला पाथ फॉलो करती हूँ तो हमारी क्या लग रही है, 6। तो आपको सबसे पहले तो कॉस्ट को ही देखना है फैक्टर में। अगर कॉस्ट सेम आ जाती है तो हम हॉप देखते हैं। अभी हम कॉस्ट देख रहे हैं तो कॉस्ट मेरी इसके रिस्पेक्ट में कम आ रही है, तो मैं कौन सा पाथ सेलेक्ट कर लूंगी, सी पे जाने के लिए ए टू बी, बी टू डी एंड डी टू सी। इसी तरीके से डी पे जाने के लिए कौन सा पाथ सेलेक्ट हो जाएगा, ए टू बी एंड बी टू डी, क्योंकि कॉस्ट 3 आ रही है। जबकि ए से आप इस पे जाओगे तो 7 आ रही है, तो 7 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ए टू सी और सी टू डी। तो हम कौन से सेलेक्ट कर लेंगे, ए टू बी एंड बी टू डी। तो ये आपका ट्री बन गया, ए टू बी, बी टू ई, B2D and D2C. This is your shortest path tree. Okay. Now you will generate here the LSP packets and then broadcast to the routers. अब एक और देखते हैं। अब एग्जाम्पल 4 देखो। सपोज ए राउटर ने LSP पैकेट जनरेट किया। अभी ये ग्राफ है, तो सबसे पहले फ्लडिंग से पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ट्री लगाना होगा। तो देखो ए से बी पे जाने की कॉस्ट कितनी है, 2।
और यही सबसे मिनिमम है क्योंकि आप डी से जाओगे तो कितनी आएगी 1 + 2 + 1 4 विच इज वेरी हाई रादर देन योर 2। तो हम क्या ले लेंगे, ए से बी वाला ले लेंगे यहाँ पे तो कॉस्ट, ठीक है। इसी तरीके से मुझे ए से जाना है डी पर, ठीक है। ए से डी पे जाना है तो मैं कौन सी सेलेक्ट करूंगी, यही वाली सेलेक्ट करूंगी क्योंकि ये सबसे मिनिमम है 1, ठीक है। तो ये दोनों तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट पे मिल गए। अब मुझे ए से सी पे जाना है, तो ए से सी पे जाने के दो रास्ते हैं, वाया बी और वाया डी। अगर वाया मैं बी जाती हूँ तो कॉस्ट कितनी लग रही है 2 + 1 विच इज 3, एंड वाया डी जाती हूँ तो भी 1 + 2 3 लग रही है कॉस्ट। ओके, यहाँ टाई आ गया। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ होप। नंबर ऑफ होप कितने हैं, ए से सी पे वाया बी जाने के लिए 1 और 2, एंड ए से सी पे डी वाया डी जाने के लिए नंबर ऑफ होप्स कितने हैं 1 और 2, तो यहाँ पे भी ये 2 है। नाउ होप्स आर ऑल्सो सेम। अब हम क्या करेंगे, अगर होप भी सेम होते हैं तो हम कौन सा पाथ सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपकी मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है। अगर आप वाया बी जाते हो तो आपकी बैंडविड्थ कितनी आ रही है 10 Mbps + 100, दिस इज 100, ओके। सो 10 Mbps + 100 Mbps, दिस इज 110 Mbps, 110 Mbps। और जबकि आप वाया डी जाते हो तो कितनी है 100 + 100 विच इज योर 200 Mbps। तो देखो बैंडविड्थ के केस में जो ज्यादा मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी ना वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम कौन सा पाथ सेलेक्ट करेंगे, डी वाला। तो A to D एंड D to C, दिस पाथ वी विल सेलेक्ट फॉर द LSP पैकेट। तो ये ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाने के लिए आपको डिस्टेंस काउंट करनी है। अगर डिस्टेंस जो सबसे मिनिमम हो गया वो सिलेक्ट करेंगे। अगर दो आपके पाथ की डिस्टेंस सेम हो जाती है तो आप मिनिमम नंबर ऑफ होप सेलेक्ट करेंगे, और अगर डिस्टेंस और होप दोनों ही सेम हो जाती है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। ओके, सो दिस इज द केस, you can find out the your shortest path tree in the LSP packets, for the LSP packets, okay। एक इसमें ये चीज भी होती है कि इसमें आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप नेबर की डिस्कवरी, अगर मैं इसको अब कॉम्प्रिहेंसिव वे में या हम इसको एक कंपाइल्ड वे में स्टेप्स इसके बताना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले नेबर डिस्कवरी हुई, राउटर्स फाइंड देयर डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स। नाउ LSA जनरेशन और वी कैन से LSP, ठीक है, दोनों ही चीजें होती हैं इसमें। तो LSP जनरेशन में ईच राउटर क्रिएट्स अ मैसेज डिस्क्राइबिंग इट्ससेल्फ एंड इट्स लिंक्स। नेक्स्ट इज LSA flooding, LSP flooding, so router shares their message with all other routers। यहाँ पे देखो LSA भी यूज होता है और LSP भी यूज होता है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगी क्या होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोनों होते पैकेट्स ही है, मतलब मैसेज ही है जो कि ब्रॉडकास्ट होते हैं, ओके। तो फ्लडिंग करते हैं हम। फ्लडिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लडिंग से पहले इसमें हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। आफ्टर दैट all routers maintain a synchronized view of the network, then we will calculate the shortest path to each destination। routing table is calculated based on the shortest path, and these routing tables or these routers update the information periodically to adapt the changes, and then convergence is happen where the network stabilizes ensuring efficient routing to all destination, ओके। तो देखो LSA और LSP पैकेट दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। LSA की फुल फॉर्म होती है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, जबकि LSP की फुल फॉर्म होती है लिंक स्टेट पैकेट। दे बोथ आर यूज्ड फॉर अ लिंक स्टेट राउटिंग protocols, but they serve slightly different purpose। अगर हम LSA की बात करें तो LSA कहाँ पे यूज होता है, the protocols like OSPF means open shortest path first। router generates LSAs to describe themselves and their direct connected links। they are flooded throughout the network to ensure all routers have a consistent view of the network topology। देखो इनका मेन पर्पस होता है that कि all routers should have a consistent view of your network topology, how the networks are arranged, what are the structure of a network, okay। अगर हम बात करें LSP की, तो LSP अभी मैंने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने दोनों चीजों के बारे में बताया था कि दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो OSPF होता है और एक ISIS होता है। OSPF इज योर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और आपका ISIS क्या होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। तो जो LSP पैकेट्स होते हैं वो बेसिकली आपके ISIS पाथ में यूज होते हैं, जहाँ पे राउटर क्या करता है, जनरेट करता है लिंक स्टेट पैकेट्स को टू डिस्क्राइब द राउटर्स इंटरफेस एंड रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। Here this LSP packets are also flooded, अभी हमने देखा है ना, फ्लडिंग के लिए हम पहले इसको शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में कन्वर्ट कर रहे थे और फिर इसकी फ्लडिंग करवा रहे थे, ओके। ये भी किस लिए यूज होता है, टू मेंटेन द कंसिस्टेंट व्यू ऑफ योर नेटवर्क टोपोलॉजी, ओके। सो तो बेसिकली दे बोथ सर्व द सिमिलर रोल्स। सो आप
कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार क्वेश्चन में LSA भी लिखा हुआ आ जाता है, तो LSA एंड LSP आर सेम, बस LSA जो है वो आपका OSPF में यूज होता है और LSP जो है वो आपका ISIS प्रोटोकॉल में यूज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर LSP पैकेट्स एंड LSA एंड दिस इज ऑल अबाउट योर लिंक स्टेट एल्गोरिथम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें OSPF के बारे में पढ़ना है, बट OSPF के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल और इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होते हैं इंटर डोमेन और एक होते हैं इंट्रा डोमेन। ठीक है, एक होते हैं हमारे इंट्रा डोमेन। अगर मैं इंट्रा डोमेन की बात करूं तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो लिया है, सपोज दिस इज वन ऑटोनोमस सिस्टम एंड दिस इज अनदर ऑटोनोमस सिस्टम। इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काफी सारे डिवाइसेस हैं जो कि एक टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड होंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी इस ऑटोनोमस सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो किसी एक टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड होंगी। व्हेन योर पैकेट्स आर राउटेड फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर within the same autonomous system. See, this is the one autonomous system AS1 and this is another autonomous system AS2. In AS1 means अगर आपके जो पैकेट्स हैं वो रूट हो रहे हैं एक राउटर से दूसरे राउटर में बट सेम ऑटोनोमस सिस्टम में, तब तो हम उसे क्या कहते हैं, इंट्रा डोमेन। बट अगर पैकेट्स जो हैं आपके वो राउट हो रहे हैं या रूट हो रहे हैं फ्रॉम वन router to another router and from one autonomous system to another autonomous system, then it will called the inter domain. ठीक है, तो इंट्रा डोमेन मतलब within a same autonomous system packets are routing and your inter domain means in a different autonomous system your packets are forwarding. okay, तो अगर हम इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, आपके RIP हो जाएगा, मींस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो होती है। ठीक है, RIP। और कौन सा हो जाएगा, OSPF इज ऑल्सो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फॉरवर्डिंग, और ये किसका हमने बताया था प्रोटोकॉल था, ये लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, अभी मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये दोनों किसके टाइप हो जाते हैं, आपके इंट्रा डोमेन राउटिंग के। अगर हम इंटर डोमेन राउटिंग की बात करें, यानी कि जब पैकेट्स आपके रूट हो रहे फ्रॉम वन राउटर टू दी इन वन ऑटोनोमस सिस्टम टू अ राउटर इन अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, इसको हम कहते हैं इंटर डोमेन। तो इसके लिए आप यूज करते हो BGP मींस बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और इसको हम, ये किसके अंदर आता है, आपका पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, देखो अब कुछ लिंक्स के बारे में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे एक होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक, राउटर टू राउटर, एक होता है आपका स्टब लिंक, राउटर टू लैन। ठीक है, और एक होता है आपका ट्रांजिएंट लिंक विच इज इन अ हिरारिकल मैनर। तो हिरारिकल राउटिंग जो होती है, इट इज ऑल्सो अ राउटिंग इन विच द इफेक्टिव राउटिंग टेबल साइज डिक्रीजेस, सो द सर्चिंग टाइम विल बी लो एंड द पैकेट विल बी फॉरवर्डेड बाय द राउटर फास्टली। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग का एग्जांपल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फॉरवर्डिंग। देखो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फॉरवर्डिंग में क्या होता है, आपके पास एक, हम कह रहे हैं इंट्रा डोमेन होता है ये, यानी कि विद इन अ ऑटोनोमस सिस्टम आपके पैकेट्स रूट करेंगे। तो ये आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम हमने बनाया। अब इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इस कंप्लीट ऑटोनोमस सिस्टम को इनटू द एरियाज, लाइक एरिया 0, एरिया 1 एंड एरिया 2। Now from these area, this area 0 will act as a backbone area. ठीक है, किसकी तरह वर्क करेगा, बैकबोन एरिया की तरह। नाउ व्हेन अ पैकेट हैज टू बी फॉरवर्डेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, मीन सपोज देयर इज अ पैकेट विच इज वांट्स टू फॉरवर्ड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, तो वो कैसे पास होगा, इट हैज टू बी पास्ड वाया एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, सेम ऑटोनोमस सिस्टम में जब एक पैकेट आपका एक एरिया से दूसरे एरिया में फॉरवर्ड होता है तो वो पैकेट किससे पास होगा, आपका एरिया बॉर्डर राउटर। तो जो लैन और राउटर के बीच में लिंक होगा वो तो क्या कहलाएगा, आपका स्टब लिंक। ठीक है, यहाँ पे सोर्स का IP और डेस्टिनेशन का IP गिवन होगा पैकेट के अंदर, और जब राउटर टू राउटर आपका कनेक्टिविटी होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट टू पॉइंट। और जब ये कंप्लीट आप देखोगे, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आप कंप्लीट देखोगे तो ये कौन से लिंक्स को प्रोवाइड करेगा, ट्रांजिएंट लिंक को। ठीक है, वाया दिस। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, जब एक एरिया से दूसरे एरिया में आपको पैकेट फॉरवर्ड करना है तो पैकेट किससे पास होगा, एरिया बॉर्डर राउटर से। और जब आपको पैकेट ट्रांसमिट करना है एक ऑटोनोमस सिस्टम से किसी और दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में, तो वो किससे पास होगा, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर से। देखो यहाँ लिखा है मैंने, the packet has to be transmitted from one area to one autonomous system to another autonomous system, then it has to be passed via autonomous system boundary
राउटर। तो आपको OSPF में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो होता है आपका एरिया बॉर्डर राउटर और एक होता है आपका ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। जब एक एरिया से दूसरे एरिया में पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो पैकेट किससे पास होंगे, एरिया बॉर्डर राउटर से। और जब एक ऑटोनोमस सिस्टम बॉडी से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम बॉडी में आपको पैकेट ट्रांसफर करना है तो वो किससे होंगे, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर से। तो दिस इज योर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल। ओके, एरिया 0 जो होता है यहाँ पे बैकबोन एरिया होता है। अब नेक्स्ट है आपकी पाथ वेक्टर राउटिंग। तो पहले प्लीज मुझे एक रिक्वेस्ट है, जिनको भी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं, जिनको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स पढ़ने, वो प्लीज शेयर कीजिए चैनल को, क्योंकि व्यूज अभी भी बहुत कम आ रहे हैं और मैं बहुत इस चीज के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना कवरेज कर सकें सिलेबस का। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज्यादा लोगों को हेल्प मिल पाएगी। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं कि पाथ वेक्टर राउटिंग क्या होती है। पाथ वेक्टर राउटिंग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, हमारी स्टैटिक है कि डायनेमिक है, ये मैंने बता रखा है। और स्टैटिक है तो क्यों और डायनेमिक है तो क्यों, ठीक है। पाथ वेक्टर राउटिंग में हमारा क्या होता है, हम यूज करते हैं इसके अंदर एक BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है ये हम इसमें देखते हैं। Okay, so path vector routing. So this path vector routing is exemplified by the Border Gateway Protocol (BGP). Border Gateway Protocol, it advertises the routers along with the path attributes, including the sequence of autonomous system. It enables policy-based routing decision and prevent the routing loops, but they can suffer from the slower convergence. Okay, so what we can say here, your path vector routing, it is also another type of routing algorithm used in your computer network, and it is primarily associated with the border gateway protocol. Okay, border gateway protocol BGP, which is used to route the traffic between autonomous system on the internet. ये हमने अभी बताया है कि path vector routing क्या होता है, इंटर डोमेन होती है, ठीक है। इसके अंदर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, BGP means your border gateway protocol, and this border gateway protocol used to route your traffic between the autonomous system on the internet. So what we have here, some path information we have. Okay, unlike your distance vector link state routing which focuses on the metrics like your hop count or link state, path vector routing consider the entire path of a destination network. So each router advertise the entire path it has to reach a particular destination. इसके अंदर आप क्या करते हो, कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हो, पाथ वेक्टर की, ठीक है। यानी कि आप कंप्लीट पाथ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन करके रखते हो। नेक्स्ट आपका होता है पाथ एट्रीब्यूट। सो BGP राउटर एक्सचेंज द राउटिंग इंफॉर्मेशन along with the attributes that describes various properties of path, such as your autonomous system path. Your next hop means the next router along the path. Okay, तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पाथ एट्रीब्यूट्स कंटेन करके रखता है ये BGP और राउटर जो होते हैं, ये क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं अबाउट द एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ योर पाथ, कि कैसा आपका इसका पाथ है, मींस कि क्या सीक्वेंस पास हो रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम से, और नेक्स्ट हॉप कौन सा है जिसके ऊपर नेक्स्ट राउटर आपका पाथ के थ्रू अलोंग करेगा। नेक्स्ट आपका होता है लूप प्रिवेंशन। इसके अंदर लूप प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इन योर पाथ वेक्टर राउटिंग इट इंक्लूड्स अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द लूप routing loops. How BGP router use the asynchronous path attribute to ensure that routers don't traverse the same autonomous system twice. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लूप प्रिवेंशन कैसे होता है, BGP एक एट्रीब्यूट यूज करता है विच इज कॉल्ड ऑटोनोमस सिस्टम पाथ। ये क्या इंश्योर करता है कि जो पैकेट है वो सेम ही ऑटोनोमस सिस्टम में ट्वाइसली ट्रेवर्स ना करे, जिससे क्या होगा, लूप का प्रिवेंशन होगा। Okay, also it is called as a policy based routing. Policy based routing का क्या मतलब है, here your BGP allows the network administrator to apply the policies based on the path attributes. So this enable you a fine grained control over routing decisions such as preferring certain paths over path other based on factors like cost, performance, administrative प्रेफरेंस। मतलब कि इसके अंदर आप क्या होता है, बेसिकली ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि BGP के अंदर क्या होता है, योर BGP अलाउज योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू अप्लाई सम पॉलिसीज
बेस्ड ऑन दी पाथ एट्रीब्यूट्स। जो पाथ एट्रीब्यूट्स हमने देखी कि असिंक्रोनस पाथ हमें क्या लेना है या फिर नेक्स्ट होप हमें क्या लेना है, उसके बेसिस पे आप पाथ को सेलेक्ट करते हो। उसके अलावा और क्या फैक्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, कॉस्ट, परफॉर्मेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन जो हमारा पाथ वेक्टर राउटिंग है ये कई बार किससे सफर करता है, आपका स्लो कन्वर्जेंस से। स्लो कन्वर्जेंस से क्यों? बिकॉज इन लार्जर नेटवर्क्स, देखो स्पेशली किसमें स्लो कन्वर्जेंस आप सफर करोगे, लार्जर नेटवर्क्स में। क्यों? क्योंकि प्रोपोगेशन ऑफ द राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड द नीड फॉर द राउटर्स टू इवेल्युएट द पाथ एट्रीब्यूट्स एंड पॉलिसीज आर हाई, दैट्स व्हाई योर कन्वर्जेंस इज वेरी स्लो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने बताया कि बीजीपी प्रोटोकॉल से यूज होता है। यहाँ पे एक आईबीजीपी होता है और एक होता है ईबीजीपी। ओके, आईबीजीपी आपका इंटीरियर बीजीपी प्रोटोकॉल हो जाएगा और आपका एक्सटीरियर बीजीपी प्रोटोकॉल के लिए आप यूज करोगे ईबीजीपी, ठीक है। जब आप विद इन ऑटोनोमस सिस्टम यूज कर रहे हो तब हम यूज करेंगे आईबीजीपी, और जब आप एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जाओगे तो हम यूज करेंगे यहाँ पे ईबीजीपी। ईबीजीपी को और हम क्या बोलते हैं, इसका जो राउटर यूज होता है वो क्या यूज होता है, एक्सटीरियर राउटर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पाथ वेक्टर राउटिंग। पाथ वेक्टर राउटिंग के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, बट आपका ज्यादा से ज्यादा आपसे फ्लडिंग के बारे में, लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये राउटिंग एल्गोरिथम वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि सब्सक्राइबर्स और हमारे आ जाएं और हमें लोगों को और ज्यादा नॉलेज देने का मौका मिले। थैंक यू।